Hello everyone, my name is Dr. Amima Shoaib, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management. Today I will be taking session on marketing analytics, and this would be the first session or the lecture 1 which would be totally on introduction to marketing analytics. In this I will be basically covering about what the marketing analytics is, the advantages, disadvantages, what are the key facts to marketing analytics. Before understanding or going depth into the marketing analytics, let's have a quick review what marketing is exactly. As you must have studied in your subject marketing management, it was creating, communicating, delivering and exchanging goods and services to its customers, to its clients, to its partners and to society at large. The basic purpose of marketing was to create the awareness among the consumers, to persuade consumers to purchase your products. Then coming to the first slide, that is marketing science is the analytic arm of marketing. As you can see on the screen, marketing science as we are very well aware is the systematic body of knowledge, and how it is related to analytic arm of marketing in terms of analytic. When we use the word analytic arm, analytic is logical reasoning, systematic, investigative, and when it comes to marketing, marketing is all about customers. It is interchangeably used with marketing analytics, and it seeks to quantify the causality. What is the cause? Basically, its overall purpose is to decrease the chances of marketeers for making a wrong decisions that may lead to a wrong path, and it helps in making the informed decisions that are of strategic in nature. Now let's understand what exactly marketing analytics is. As you can say, it is measuring, managing and analyzing marketing performance to maximize its effectiveness and optimize return on investment. जहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है मेजरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस. हमें मेजर करना है कि हम जिस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं जो हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या वो हमको उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है. ऐसा तो नहीं है जितना भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारा वेस्ट तो नहीं जा रहा है. उसके बाद मार्केटिंग एनालिटिक्स कंप्राइजेज द प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज दैट enables the marketers to evaluate the marketing initiatives accomplished by the measuring performance. जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमने देखा हुआ है सोशल मीडिया चैनल वर्सेस चैनल कम्युनिकेशन, इसमें हम बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एड्स कर रहे हैं. उसके बेसिक पर्पस होता है कि हमें रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, क्या हमें रिटर्न्स उस हिसाब से मिल रहे हैं जिस हिसाब से हमने पैसा लगाया, उस हिसाब से क्या हमारी सेल्स ग्रो हो रही है, उस हिसाब से क्या हमारा कंज्यूमर बेस या कस्टमर बेस स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये सब हमें कैसे हेल्प होता है मार्केटिंग एनालिटिक्स से, जो भी डेटा रिट्रीव करते हैं हम उसके थ्रू. मार्केटिंग एनालिसिस यूजेस इंपॉर्टेंट बिजनेस मेट्रिक्स सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, marketing attribution and overall effectiveness. In other words, it tells you how your marketing programs are actually performing. जो हम जिस तरीके से एट्रीब्यूशन थ्योरी पे जाते हैं, हम जिस तरीके से अपने प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट या मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन सब चीज़ों पे क्या हमें उस हिसाब से रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है. अब आता है वाई मार्केटिंग साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे कि हमने पहले बोला, जब हम साइंस की बात करते हैं, हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मार्केटिंग हमारे कस्टमर से रिलेटेड है, तो इसमें साफ ये बताया गया है कि एक क्वांटिफाई करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, कॉजालिटी को. जब तक हमें कॉजेज़ नहीं पता होंगे किसी चीज़ के, तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या हम किस तरफ हमें यही नहीं पता होगा फॉर इंस्टेंस कि हमें कौन सा लीवर पुल करना है, हमें किस सेगमेंट को टारगेट करना है जब हम मार्केटिंग में अपने कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द ट्रेंड्स ओवर टाइम. किस तरीके से ट्रेंड जा रहा है, क्या क्या सिचुएशंस है, किस तरीके से मार्केट जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स के थ्रू. जैसे कि हमने देखा, इट क्वांटिफाइज द कॉजालिटी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर. तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, हब होता है, पाइवट होता है, अराउंड विच ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हिंजेस, क्योंकि कंज्यूमर ही होता है जिसके लिए हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. एनी मार्केटिंग दैट इज़ नॉट अबाउट कंज्यूमर इज़ हेडिंग डाउन ऑन द रॉन्ग रोड, क्योंकि हम सब कुछ जो कर रहे होते हैं वो हम अपने अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए कर रहे होते हैं. मार्केटिंग साइंस हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके बेसिस में हम अपने फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं.
फिर मार्केटिंग साइंस हेल्प्स इन टीजिंग आउट दी स्ट्रैटेजी, जैसे कि हमने पिछले भी उसमें अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमें जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए लेते हैं, यूज़ करते हैं, एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर पिक्चर on the working and reports of each program. By easily helping to study market trends, analytics facilities to proficiently forecast future market situations, कि हमारा आगे मार्केट क्या होने वाला है, क्या हमारे जो रिटर्न्स हैं उस हिसाब से हमें मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, क्या उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारे जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उस हिसाब से क्या प्रोडक्ट हमारे मार्केट में एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर के जो हमारे प्लान्स हैं उसके बेसिस पे. मार्केट स्टडी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड अलाउज मॉनिटरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. की टू मार्केटिंग एनालिसिस एज इट इज़ नोन एज द ऑयल जैसे हमें इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, वैसे ही ये जो है इसको हमने ऑयल कह रखा है. क्यों ऑयल कह रखा है? जो डेटा है, जो मार्केटिंग एनालिटिक्स के थ्रू हमको डेटा मिल रहा है, जैसे कि हमने इसमें भी विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी बिग डेटा प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. ऑयल और हम बिग डेटा की बात करते हैं तो इसमें जो डेटा होता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसी के फॉर्म में आती है. इसीलिए क्योंकि अब हम डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, सारी की सारी हमारी इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर चुकी है, हमारे जो कंज्यूमर के रिव्यूज़ होते हैं उसी के बेसिस पे हम मार्केटिंग एनालिटिक्स करते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं उसी के बेसिस पे हम मार्केटिंग एनालिटिक्स करते हैं. देन कम्स व्हाई डू यू नीड मार्केटिंग एनालिटिक्स. सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें मार्केटिंग एनालिटिक्स की नीड क्यों ही है. As a marketer, it helps in understanding the target audience in greater detail. जब हम सेगमेंट की बात करते हैं हमें अपना ऑडियंस को डिटेल में समझने की कोशिश करता है, किस टारगेट को हमें, किस सेगमेंट को हमें आगे चल के टारगेट करना है, किसके लिए हमारा प्रोडक्ट है. क्योंकि मार्केट ऐसा मैस मार्केटिंग वुड नॉट बी सक्सेसफुल, इज़ नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस की तरफ ही जाते हैं. आइडेंटिफाई वेयर योर कॉम्पिटिटर्स आर इन्वेस्टिंग द एफर्ट्स. हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो कहाँ कहाँ किस किस सेगमेंट में किस तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं. उसी तरीके से जो कंपेटिटर्स होते हैं वो भी अपना वे फॉर्म करते हैं. मेजर हाउ वेल योर मार्केटिंग कैंपेन्स आर परफॉर्मिंग. जो डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, जिस तरीके से हमारे एसईओज हैं, जिस तरीके से हमारे एड्स हैं, जो गूगल एड्स हैं या नॉर्मली हमारे टेलीविज़न के एड्स हैं, किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं. फिर मॉनिटर करंट ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स. जो करंट ट्रेंड्स हैं मार्केट में और फ्यूचर ट्रेंड्स, ये हमें करंट ट्रेंड्स के बेसिस पे हम फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट कर सकते हैं या कहते हैं हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड दिस डेटा हेल्प इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ आवर मार्केटिंग प्लान्स. लेट अस अंडरस्टैंड मार्केटिंग एनालिटिक्स विद एन एग्जाम्पल ऑफ सेफोरा. सेफोरा जो कि एक अपने आप में एक ब्यूटी जायंट है. जैसा कि हम समझते हैं या हम ये चीज़ जान भी रहे हैं, आज की डेट में हर चीज़ें बहुत कस्टमाइज़ होती जा रही हैं. From product discovery tools to customized loyalty rewards, it has left no stone unturned to create a memorable customer journey. क्या होता है कि जैसे ही हम किसी अपनी, जैसे फॉर इंस्टेंस सेफोरा की ही होम पेज पे जाते हैं, वो हमें अपने आप ही रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स दिखाने लगता है. एंटायर सिलेक्शन जो चीज़ें आती जाती हैं, जो हमारी पास्ट परचेजेस होती हैं या हमने जिस तरीके से ब्राउजिंग की होती है उसके बेसिस पे पूरी लिस्टिंग आने लगती है. उसके अलावा जैसे सेफोरा ने मार्केटिंग एनालिटिक्स को कैसे यूज़ किया, दे ऑल्सो हैव अनदर टैब ऑन द होम पेज दैट स्पेशली क्यूरेट्स द न्यूली रिलीज प्रोडक्ट्स ऑन द न्यू फॉर यू सेगमेंट एंड उसके बेसिस पे आपके रिकमेंडेशंस आते हैं. ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब आपका मार्केटिंग एनालिटिक्स के थ्रू हो रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल अंडर आर्मर, जो कि एक आपकी स्पोर्ट्स फिटनेस स्पोर्ट्स कंपनी है, जो कि आपको स्पोर्ट्स अपीयरल्स, शूज़, बहुत सारी चीज़ें प्लस वेरेबल्स सब प्रोवाइड करती है. इट गैदर्स डेटा फ्रॉम कनेक्टेड फिटनेस कम्युनिटी एंड हेल्प्स पर्सनलाइज मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स एंड कम अप विद पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट्स. क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जैसे फॉर इंस्टेंस उसने अपनी ऐप बना रखी है कनेक्टेड फिटनेस कम्युनिटी के थ्रू, उसमें अराउंड 200 मिलियन कंज्यूमर्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी
उसके वेरेबल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, उसकी फिटनेस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो डेटा रिट्रीव होता है, जो डेटा एक्यूमुलेट होता है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, what has to be highlighted, what has to be offered to the customers. The fitness conscious community has several triggers, and Under Armour is able to create engagement and drive actions too. मार्केटिंग एनालिटिक्स की बात हो और नेटफ्लिक्स का नाम ना आए तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग एनालिटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ आज की डेट में नेटफ्लिक्स, जो कि एक आपको स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको आपकी चॉइसेस के हिसाब से सारे सीरीज़ एंड मूवीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो भी मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, उसके बेसिस पे जो आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है, and they help to promote to specific viewers. This directly contributes to revenue as it helps to drive up viewership for shows and keep the customers engaged. Now let us understand the benefits of marketing analytics. जब हमने ये समझ लिया कि marketing analytics की बात आ रही है, जहाँ पे data involve हो रहा है, तो उसकी advantages भी हैं और उसकी disadvantages भी हैं. और हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, जो कंपनीज़ हैं, दे आर इन्वेस्टिंग अराउंड 11%, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च दैट हैव बीन कंडक्टेड बाय द कंपनीज, 11% ऑफ द टोटल बजट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग एनालिटिक्स, दैट इज़ मार्केट रिसर्च, जिसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग्स कर रहे हैं. Before understanding, let us have a quick review of marketing analytics, how it is driving towards a positive way or how it is benefiting the companies at large. The plethora of data available today makes the business to develop new strategies to make smart marketing decisions, retain customers and enhance customer satisfaction. जैसे कि हम एक चीज़ देख रहे हैं सामने, new strategies develop होती हैं data के through, स्मार्ट मार्केटिंग डिसीजंस यूज बनते हैं, रिटेन कस्टमर्स, एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मार्केटिंग का भी सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव है कि हमें कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइडिंग बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, एनालिटिक्स उसको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है कि हमें किस तरफ उसको ले जाना चाहिए, ताकि जो डिसीजंस हों वो बहुत इन्फॉर्म्ड हों और वो रॉन्ग पाथ पे मत जाएं. However, the key to success lies in how accurately the company collects, analyzes and leverages data to achieve desired outcomes. कितने आसानी से वो अपने आप में डेटा कलेक्ट कर रहा है, आसानी प्लस एक्यूरेटली कितना सही तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है. एक्यूरेसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर. अगर डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तो जितने भी एडवांटेजेस होते हैं वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि डेटा जैसा डेटा कलेक्ट होगा वैसा एनालाइज होगा, उसी तरीके से हम उसको लीवरेज करेंगे, उसी तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे अपने प्रेडिक्शंस के लिए, अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए. दिस इज़ वाई मार्केटिंग एनालिटिक्स ऑफर सॉल्यूशंस फॉर मीनिंगफुल इंसाइट्स इनटू फैक्टर्स that helps derive favorable outcomes. Therefore, to determine the effectiveness and return on investment of various campaigns, leveraging marketing analytics solutions is essential for businesses to survive in the long run. Benefits of marketing analytics में हम यहाँ पे 3 बेसिक बेनिफिट्स देखते हैं, जो कि पहला है कि गेन insights into past events, analyze market campaign, प्रिडिक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर. पहले हम इंसाइट्स गेन करते हैं, पहले हम उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हैं, ताकि हमारे जितने भी पास इवेंट्स हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द चेंजिंग परचेज पैटर्न्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ the competitors that are providing good products or it is because of the existing company, your own company जिसको आप purchase कर रहे हो वो उस हिसाब से needs को satisfy नहीं कर रहा है. It helps marketers to avoid making mistakes that have already been done in the past. उन data, उन insights के base में जो qualitative information होती है या quantifiable information होती है, it is basically more of qualitative information जो कि reviews के form में भी आती है. उसके बेसिस पे अगर एज अ मार्केटर आपने कोई मिस्टेक्स करी हैं, उस मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं.
with the help of descriptive analysis, customer relationship management, and marketing automation platforms. These are basically the marketing analytical tools that provide solutions and highlights not only what has happened in the past, but also provide answers to the questions on buying patterns and customers preferences. क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता चलेगी, तब तक के जो हमारे डिसीशंस हैं रिलेटेड टू कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, रिलेटेड टू डिसीशंस रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स, डिसीशंस रिलेटेड टू मार्केटिंग कैंपेन्स, हम अच्छे से नहीं ले पाएंगे या हम करेक्ट नहीं ले पाएंगे. देन एनालाइज करंट मार्केटिंग कैंपेन्स. जो सेकंड बेनिफिट होता है, क्योंकि हम ऑब्वियस ही बात है कैंपेन्स में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेजर पोर्शन हमारा अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट होता है मार्केटिंग कैंपेन्स में. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स. ये बेसिकली हमको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बताते हैं कि किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है. Consequently, this help in making changes to marketing strategies to avoid mistakes and help in making improvements in the existing marketing campaigns. कि हमें किस टाइप की एडवर्टीजमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्या एड्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है, या एड्स हिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. यूजिंग मार्केटिंग एनालिटिक्स डैशबोर्ड टू डिस्प्ले current engagement levels or the status of new leads, companies can assess the real-time status of their marketing efforts. Then predict the consumer behavior. जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस. दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल that is used in marketing analytics, which would be discussed in the future lectures. I'll just be giving a brief theory of it. एंड ये बेसिकली आपको प्रिडिक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, किस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम रिट्रीव करते हैं उसके बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक्स सच एज क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोपेंसिटी मॉडल एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कंपनीज can anticipate the consumer behavior. Also, predictive models can be used to target at-risk customers through tailor messages and loyalty programs. जो कि predictive models के through जो भी conclusions निकलते हैं, जो भी हमारे results निकलते हैं, हम tailored messages and loyalty programs के through अपने customers को retrain कर सकते हैं. Marketers can utilize this information to execute marketing analytic techniques to retain customers. जो भी इंफॉर्मेशन हमको इसके थ्रू मिलती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू, हम अपना कस्टमर रिटेंशन की तरफ सोच सकते हैं. जब हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तो ऑब्वियस ही बात है ज़रूर जुड़ी होगी. क्यों डिसएडवांटेज जुड़ी होगी? क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर हम कोई भी चीज़ एडेप्ट करने जा रहे हैं वो हमको 100% सक्सेस ही प्रोवाइड करे. अनगारंटीड सक्सेस, data misrepresentation, inappropriate data collection method, huge expenses. ये अपने आप में अगर डेटा ठीक से, जैसे कि मैंने आपसे बोला एडवांटेजेस में, कि अगर डेटा ठीक से कलेक्ट नहीं किया जाता है, डेटा ठीक से एनालाइज नहीं किया जाता है, मेजरमेंट नहीं की जा रही है, तो जो एडवांटेजेस हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. मार्केटिंग एनालिटिक्स एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं प्रोवाइड करता. इट डज नॉट गारंटी कि जो चीज़ बताई गई ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट इज़ बीन रिट्रीव्ड वो आपको एक्यूरेट होगा. इट मेयरली एनालाइजेज अ फ्रैगमेंट ऑफ द मार्केट कवर्ड इन द रिसर्च विच वुड नॉट बी अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल मार्केट. ऑब्वियस ही बात है, हमने डेटा कलेक्ट किया एक सिंगल सेगमेंट से या 4 सेगमेंट से, एक सैम्पल उठाया, उसके बेसिस पे हमने किया, एंड ज़रूरी नहीं है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो एंटायर पॉपुलेशन का. फॉर इंस्टेंस अगर हमें देखना है कि एक हम लैक्मे की पीच क्रीम यूज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि एंटायर यूपी या एंटायर इंडिया में ही हो. जो डेटा हमको यूपी से मिला वही डेटा ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो,
क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी वो कंप्लीट या ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल मार्केट ऑफ द कंट्री हो. इट मे नॉट बी पॉसिबल टू हैव अ सिंगल मार्केट एनालिसिस कवरिंग ऑल द पैरामीटर्स इन द मार्केट सच एज प्राइस, डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. ऑब्वियस सी बात है, जो सिंगल मार्केट, अगर फॉर इंस्टेंस हमने यूपी की मार्केट ली है, यूपी की मार्केट से जो हमको रिजल्ट्स निकल रहे हैं, जो पैरामीटर्स विद रेफरेंस टू या जो भी हमने डेमोग्राफिक फैक्टर्स कंसिडर किए हैं या माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर उस पर्टिकुलर रीजन से लेकर लेकर कंसिडर करके डेटा को हमने एनालाइज किया है, ज़रूरी नहीं है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन एंटायर कंट्री के लिए हो सकते हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए डिफरेंट हो, महाराष्ट्र के लिए डिफरेंट हो, दिल्ली के लिए डिफरेंट हो, कर्नाटका के लिए डिफरेंट हो. तो दिस मार्केटिंग एनालिटिक्स डज नॉट गारंटीज सक्सेस. देन कम्स अनदर डिसएडवांटेज, दैट इज डेटा misrepresentation. Data misrepresentations form a market analysis that can be detrimental to you, to your marketing campaign. अगर डेटा ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है उसका, तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है. इट कैन ऑब्वियसली, जब डेटा इंटरप्रेट सही से नहीं हुआ है तो जो कंडीशंस हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं वो भी सही नहीं होंगे, जो हम मार्केटिंग डिसीजंस लेने जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं होंगे. Therefore, before making decisions based on the information gathered from the marketing analysis, we as an investor, we as a manager should obviously seek help from professional market analyst, ताकि जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं फ्यूचर में वो गलत ना हो. The analyst can help identify pitfalls and help you avoid an inept market strategy based on flawed analysis. ये जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस होते हैं या डेटा मिस रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, वो भी जो पिटफॉल्स होते हैं, दे हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट दोज फ्लॉज. एंड जो भी अगर आपकी गलत स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो कि आपको फाइनेंशियल लॉस दिला सकती हैं, उसमें हेल्प करेगा. Inappropriate data collection method. Inappropriate data collection methods can lead to inaccurate information. For example, using questionnaire to retrieve data can be unfruitful when construct questions in the wrong way. अगर हम क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या रिस्पोंडेंट्स ने जो परसेप्शन ड्रॉ किया है उस चीज़ को लेकर, अगर उसका रिस्पॉन्स सही नहीं है या क्वेश्चनेयर सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से हमने क्वेश्चनेयर सही से ड्राफ्ट नहीं किया है, तो रिज़ल्ट्स ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों और वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे. जब वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे रिज़ल्ट्स गलत ही होंगे. These are basically the disadvantages of the marketing analysis. One is the huge expenses. Marketing analysis is financially taxing because it involves huge expenses. Data collection में भी बहुत पैसा लगता है. Market analyst को जो हम hire करते हैं या research agencies, उसमें cost involve होती है. And business firms do not have adequate resources to hire experts and conduct comprehensive market survey. Therefore, it is necessary कि ये जितनी huge expenses भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा disadvantage होता है. Thank you students. This was basically the introduction about the marketing analytics. We would be going further about it in the next lecture. Thank you.